Canada stops 10 years multiple visa. What to do? Hello everyone, my name is Rohit Menon, former visa officer, ex-visa officer, director of EduConnect International Private Limited. We operate by the name of the brand called Visas Connect from New Delhi, Gurgaon. So today, let me discuss with you the effect, the impact of the cancellation or the closure of a 10-year multiple entry visa by IRCC for visitor visa category and what to do about this. I will keep this conversation in English and Hindi so all my followers can understand it very clearly. तो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जो जैसे कि यूएस देती है, कनाडा ने उसको बंद कर दिया है. तो अब क्या करना चाहिए? Guys, first of all, we need to understand the types of visitor visas. You know, there is not just one type of visitor visa. आप सिर्फ visitor visa जो आप बोलते हैं, तो एक visitor visa नहीं. There are basically two types or maybe three types of visitor visas. Number one type is your basic tourist visa. आपने पैकेज बुक किया, आपने होटल बुक किया, आपका वहां पे कनाडा में कोई कनेक्शन नहीं है. आप जैसे बाली या इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड या बाकू ऐसी जगहों में घूमने जा रहे हो, आप क्या करते हो? आप अपने यू बुक योर होटल्स, यू बुक योर एयरलाइन टिकट्स, कंफर्म्ड एयरलाइन टिकट्स एंड यू शो इट टू द एम्बेसी टू गेट द वीजा. दिस इज कॉल्ड टूरिज्म, tourist visa application. This is one category of the application on a visit visa. The second category is a visit visa, which is a family visit. You have a son or a daughter studying in Canada. You have a son or daughter working in Canada. They are probably a PR in Canada. In that scenario, you don't apply for a tourist visa. You don't really have to book a ticket or you have to book a hotel. You need to get an invitation from your relative, probably your blood relative, like your daughter, your sister. आपकी daughter या आपकी son आपको invitation भेजते हैं कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे work कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे permanent resident हूँ and I want to invite my mother or my father or my sibling, brother, sister or my uncle to Canada for some time. They will be with me. We will tour around Canada and then they will go back to the home country, which is India or any other country where you live in. The third category of visit visa is very rarely applied, but yes, you have a partnership-based visitor visa. You have a husband or a wife. You have a spouse who lives in Canada, either on a work permit or on a student visa or maybe a PR, and you've got married recently or maybe for a long time you've been married, and then you are taking your spouse, your vice versa, husband or wife, to Canada on a visitor visa, and later you apply for the respective permanent residence application or whatever application you apply for. So these are the major three types of visa. तो जब हम बात करते हैं कि कनाडा ने 10 years का मल्टीपल वीजा बंद कर दिया है, पहली बात तो ये कि अगर आपका पासपोर्ट, कनाडा हमेशा जब वीजा इशू करता था, नॉट मेनी पीपल नो, 10 years बोलते हैं वो यूएस से कंपैरिजन करने के लिए, बट नॉट मेनी पीपल नो कि कनाडा जब पहले वीजा इशू करता था, इस अपडेट से पहले, वो तब तक के लिए वीजा इशू करता था मल्टीपल एंट्री का, जब तक का आपका पासपोर्ट, आपका इंडिया पासपोर्ट वैलिड होता था. सो लेट्स से आपका इंडिया पासपोर्ट आने वाले 4 साल तक वैलिड है, तो कनाडा पहले, इस अपडेट से पहले, वो 4 साल तक का वीजा अपडेट करता. अगर बाय चांस आपका वीजा 10 साल के लिए, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है, तो कनाडा 10 years का वीजा इशू करता. तो कभी सच देखा जाए तो 10 year का वीजा नहीं होता था. जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, तब तक वो इशू करता था आपको वीजा, और जब भी आप पासपोर्ट रिन्यू करते हो, तो आपको नया वीजा नए पासपोर्ट पे लेना होता था. तो ये इनका प्रोसेस था इस अपडेट से पहले. तो इम्पैक्ट टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन में डेफिनेटली होगा, क्योंकि टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे, आप 15-20 दिन, 1 महीने का, 25 दिन का पैकेज बनाओगे, होटल बुक करोगे, अपने टूरिज्म आइटनरी बनाओगे, और आप बोलोगे जैसे कि आप बाली
या बाकू या दूसरी कंट्रीज यूरोप में घूमने जाते हो 15-20 दिनों के लिए, एंड यू मेक योर आइटनरी, यू बुक योर होटल्स, यू बुक योर ट्रैवल टिकट एंड यू से, उन सिनेरियो में हो सकता है कि कनाडा आपको उसी टाइम फ्रेम का वीजा दे। अगर आपको 1 महीना आपने बोला है तो 1 महीना 10 दिन 5 दिन आगे पीछे आपको शायद वीजा देगा कि इस टाइम में ही आप जाके। बट ये चीज होने के लिए आईआरसीसी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आपको वीजा अप्रूवल या आपका जो डिसीजन है वो आपके ट्रैवल पीरियड जो आपने मेंशन किया है टेंटेटिव ट्रैवल, उससे पहले दें। सेकंड पॉइंट, अगर आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करते हो तो जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला आपको व्हाट टू डू, करना क्या होगा। अगर आपका फैमिली मेंबर कोई कनाडा में है जो आपको इनवाइट कर रहा है, आपकी डॉटर है, आपका सन है, योर ब्रदर इज देयर हु इज इनवाइटिंग यू एज अ स्टूडेंट, एज अ पीआर, वो वहां पे हैं और वो इनवाइट कर रहे हैं, देन इन दैट सिनेरियो जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल एंट्री वीजा मिले। हो सकता है कि आप फ्रीक्वेंटली वहां ट्रैवल करें अपने बच्चे के पास। बच्चा 4 साल की पढ़ाई कर रहा है कनाडा में या 2 साल का कोर्स कर रहा है और आप आते जाते रहना चाहते हैं, तो आपको व्हाट टू डू इज यू हैव टू मेंशन इन योर एप्लीकेशन, यू हैव टू मेंशन इन योर लेटर ऑफ इंटेंट कि आपको मल्टीपल एंट्री वीजा की रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका बच्चा वहां पे 3 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, पढ़ रहा है या पीआर है और आप फ्रीक्वेंटली आना जाना चाहते हो। तो इस रिक्वेस्ट को सब्जेक्ट टू वीजा ऑफिसर्स की पावर्स थोड़ी बढ़ा दी है, तो इट विल बी अ वीजा ऑफिसर्स डिस्क्रिशन कि वो आपको मल्टीपल एंट्री दे इन केस ऑफ फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशन। और तीसरी जो टाइप की एप्लीकेशन है जहां पार्टनरशिप है, वहां पर भी आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा हस्बैंड वहां वर्क परमिट पे है या मेरा हस्बैंड वहां पीआर है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूं या जा रही हूं, वाइस वर्सा स्पाउस के हिसाब से, एंड यू कैन रिक्वेस्ट कि मुझे मल्टीपल एंट्री दे क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी एप्लीकेशन में, आप ये चीजें डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपको सिर्फ टूरिज्म के लिए 15 दिन के लिए कनाडा घूम के आना है या आपको आते जाते रहना है। उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन में डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो आपको सारी क्राइटेरियाज हैं कि आपके एसेट्स इंडिया में क्या है, क्या चीजें हैं जो आपको वापस इंडिया में आने के लिए पुल करेगा, योर एसेट्स, योर प्रॉपर्टीज इन इंडिया, आपका एसेट्स कितना है इक्विवेलेंट टू कैनेडियन डॉलर्स, और आप क्यों वापस आओगे, आपके सोशल इंसेंटिव्स क्या है, यहाँ पे आपके एक्सटेंडेड फैमिली कौन कौन है जिसके लिए आप वापस आओगे, और आपकी जॉब क्या है, आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या है जो कि जिसकी वजह से आपको वापस आना है, प्लस आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं इस ट्रिप के लिए, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन नहीं स्पॉन्सर कर रहा है, फंड्स कितने हैं आपके पास। ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करोगे एंड इफ द वीजा ऑफिसर अंडरस्टैंड्स दिस कॉन्सेप्ट, then surely you may also be given a multiple. It is too early now after the update to say कि ये लोग क्या देने वाले हैं, मल्टीपल एंट्री सिंगल एंट्री में किस तरह की एप्लीकेशन में देंगे, फैमिली विजिट में सिंगल देंगे या मल्टीपल एंट्री देंगे। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप बार बार एप्लीकेशन डालेंगे, हर 6 महीने, हर साल में, 2 साल में एक बार, सो दिस ब्रिंग्स इन द रेवेन्यू टू आईआरसीसी। आप हर टाइम जब भी अप्लाई करेंगे तब आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो $100 की फीस पे करते हो। तो हो सकता है ये रेवेन्यू के लिए मॉडल चेंज किया हो, और हो सकता है कि ये उनका यही एक मूव है जिसमें मुझे समझ में आ रहा है कि आपका रेवेन्यू बार बार आएगा। अब अगर अभी आप एक बार ही पे कर देते हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल का वीजा मिल जाता है, यू डोंट अप्लाई अगेन फॉर द नेक्स्ट 10 years. So this will make you apply. If you want to revisit Canada, they will ask you to apply again. So मोटा नॉटशेल में दिस इज द कॉन्सेप्ट। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि क्राइटेरियाज और कैटेगरीज क्या होती हैं विजिट वीजास की, और वो सब चीजों में एक ही चीज समझते हैं। वन लास्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई विल गिव यू इज बी ट्रू इन योर एप्लीकेशन। जब आप अपनी एप्लीकेशन में अपना इंटेंट बता रहे हैं, अपनी इनकम बता रहे हैं, अपने एसेट्स बता रहे हैं, अपना पर्पस ऑफ विजिट बता रहे हैं, वो बड़ा ही क्लियरली बताएं। और सबसे तरीका बढ़िया क्लियर बताने का तरीका यह है कि अपने आप डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट करें और लेबल करें ताकि वो उनको इजीली समझ में आ जाए, एंड यू गेट योर वीजा इजीली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। आई होप दिस वीडियो was helpful with all the information. This is Rohit Menon signing off.